पहली बात तो तेजस्वी को किसी ऐसे शो में जाना चाहिए जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो। पहले तुमने वो चीज बोल दी, ठीक है, उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो कि मेरा मतलब वो नहीं था। उसके बाद मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था, और अगर उस इंसान के लिए भी था तो तब क्यों नहीं बोला गया? एंड देन द वीडियोस आर लाइक द वीडियोस आर आउट। ये जो तेजस्वी के लिए मैंने ये किया, तेजस्वी के लिए, अरे पहले अपने सीना ठोक के बोलो तो सही कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी खुद की बंदी है ना, तुम उसको हटा देते। Who are you to bloody, go and kick somebody else? ये सब फेक चीजें, बकवास चीजें पूरी दुनिया देखे। लोग अपने, मैंने जैसे कि बोला, लोग अपनी इज्जत खुद बनाते हैं और खुद ही गवाते हैं, एंड ही इज डूइंग इट ब्रिलियंटली, brilliantly. Hi, Prerna. Hi, how are you? I'm good. Yeah, how are you? I'm good, thank you. Okay, so a very warm welcome to you on Reporter. It's Thank you, pleasure having you, Prerna. Thanks. Okay, first of all, I would really like to congratulate you because you are doing an amazing job when it comes to supporting Prateek. Because without PR, it is quite a difficult task to do, especially when it comes to Big Boss. Because वहाँ पे हर दिन कुछ होता है, and you are doing a commendable job, I must say. Thank you so much. I'm glad that you all are, actually liking it. And trust me that, that keeps me going. And I was actually very scared in the starting that how is it all going to happen? And, because while we see that, everybody has got a very good PR. So I used to be really scared because at the end of the day, I don't want anything, anything. I don't want to mess up anything for Prateek. But with all the Prateek fam, I think we all are doing it together. So I think it's going great. Touch wood. Okay, Prerna, this week अगर Prateek की journey की बात करें, so it has been a roller coaster ride. बहुत से emotional burst out भी हुए हैं Prateek. As a family, when you see your loved one crying and आप वहाँ पर नहीं हो, आप उनको help नहीं कर पा रहे हो, you are not there for them. I'm sure it must be difficult for your mom as well because Prateek is fully very connected to her. What has been your reaction throughout the week and your mom's as well when we have seen such a terrible breakdown of Prateek in Big Boss house? Yeah, so whenever something like this happens, it actually, actually breaks our heart too much because we all three are very close to each other. And definitely, like, my mom is very, very emotional when it comes to Prateek because of a few reasons. And मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है, my तो like I'm on both the sides. Like my blood boils while I see people doing all this to him. And while he cries, of course it breaks my heart. And my mom is also very sensitive towards issues like this कि मतलब उनको देख के यही होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, and why is he crying, and या जैसे एक माँ का दिल होता है basically. And it gets really difficult for me also to explain my mom because I stay in Chandigarh, like I'm married here over here, and my mom stays in Delhi. So it gets really difficult to manage things like that. So though I keep on trying that she doesn't watch live feed much, but then you can't stop. Like you can't stop. I can't stop her from doing that. So yeah, mother situations like that, I don't think I can express it here. Yeah, right. Yeah. Okay, Prerna, हमने OTT पे ही प्रतीक की जर्नी देखी है, and प्रतीक is one of the contestants, जिनके हर एक शेड हमने देखे हैं. Either it is friendship, it's love, it is aggressiveness. हमने सारी चीजें देखी है. Recently, घर के अंदर आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से वो मेंटोर और प्रतीक की जो है, हमने एज अ व्यूअर जब पहले सोचा था तो ऐसा लगा था कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा बिकॉज दोनों भी इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है. अब जो जिस तरह से ये चीजें हो रही है घर में, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बिकॉज इवन अगर कल के एपिसोड में आपने देखा होगा, अगेन करण एग्रेसिव हो गए थे, पहले भी एक बार हुआ था, बट कभी भी प्रतीक के एंड से वो एग्रेसिवनेस करण को लेकर नहीं आया. व्हाट डू यू हैव? I think मतलब शुरू में जब when actually they entered, तब मुझे भी ये लगा था कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है. And as a mentor, even I respected him. But अगर mentors ऐसे होते हैं तो I think mentors ना ही हो. उन्होंने जो मतलब हर चीज दोनों साइड से होती है, right? So Prateek tried his best to maintain that and everything. But करण मतलब इस टाइम पे मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं उस इंसान के बारे में बात करूं. Literally, I don't even want to talk about that person. तुम क्या दिखा रहे हो? कहते हैं ना, इज्जत खुद कमाई जाती है. मतलब he's losing that. He's losing that all, and I don't know what to say about him. Trust me, I don't know if he's insecure about Prateek or whatever it is, but
I don't even feel like talking about him, trust me. Do you feel कि प्रतीक को खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए when it comes to Karan, because एक बार तो उन्होंने उसे उठा के just ये dropped him down. कल के इंसिडेंट में भी अगर आप देखते, वी आर नॉट श्योर कि उनको पैर लगा था जी, बट इवन वो एग्रेसिवनेस नजर आ रहा था जब हम प्रतीक को देखते. डू यू फील समवेयर कि प्रतीक को थोड़ा बहुत स्टैंड लेना चाहिए when it comes to Karan? 200% उसको पैर लगा है, उसका नी लगा है, and Pratik did take a stand. He took a very strong stand yesterday. कि मतलब उसने बोला बिग बॉस को, but I don't know what happened or whatever, that guy is still inside the house. That boils my blood even more to look at him roaming inside the house like that, doing anything and being inside the house. That's crazy. ओके प्रेरणा, जैसा मैंने कहा कि हमने ओटीटी से प्रतीक की जर्नी देखी है, एंड अभी जब घर के अंदर वीआईपी आ गए हैं, तो देयर हैव बीन लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट प्रतीक के बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, वो वीआईपीज की हर एक बात को मान रहे हैं. इवन कुछ फैंस ने भी ये लिखा दे आर प्रतीक फैंस, बट अब जो वो प्रतीक का साइड देख रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है उनके लिए देखना. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, प्रतीक इज लाइक दैट, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं वीआईपी. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. प्रतीक इज एग्जैक्टली लाइक दैट. अगर तुम किसी को कंफर्टेबल करा रहे हो या किसी को खाना दे रहे हो, वो एक इंसानियत होती है. अगेंस्ट जब जाने की बात आती है तो वो अगेंस्ट भी जाता है. जब टास्क करने की बारी आती है तो वो नॉन वीआईपीज के साथ ही टास्क कर रहा है. बट अगर तुम किसी का खाना बंद कर दोगे या किसी का व्रत है उसको तुम खाना दे रहे हो, वो तो एक इंसानियत है ना यार. मतलब व्हाट क्लैरिफिकेशन कैन अ पर्सन गिव ऑन दिस कि अगर वो उनको खाना दे रहा है तो क्या मतलब ही इज अग्रीइंग टू व्हाटएवर दे आर सेइंग. प्रतीक ने बहुत क्लियरली बोला था, कहता कि आई डोंट वांट टू कम इन योर गुड बुक्स एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग. आई एम नॉट. बट ये मैं ऐसा ही हूं कि अगर मैं किसी को भूखा नहीं रख सकता. एंड एक्चुअली ही इज लाइक दैट. इवन ओटीटी में भी हमने देखा है जिससे उसकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, पर खाने की बात हो जाए कभी भी उसने हर इंसान से पूछी है वो चीज. सो आई डोंट थिंक मतलब ये दिस इज वेरी स्टूपिड that these people whosoever is saying all of this. Okay, Prerna, ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया प्रतीक पर. इवन शी सेड दैट कि वो मीन नहीं करती थी उन सारी चीजों को, उन्होंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और तो लोग अज्यूम कर रहे हैं वो अलग है. बट द माइशा वाला टॉपिक व्हिच रेज्ड इनसाइड द बॉस हाउस, डू यू थिंक इट इज क्वाइट फेयर इनफ जब दो लड़के स्पेशली लड़ रहे हो और आप ऐसे टॉपिक्स निकाल रहे हो कि बहुत इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं लड़कियों को, बिकॉज इट इज अ बिग स्टेटमेंट फॉर एनी गाय इट कम्स फ्रॉम अ वुमन. आई थिंक पहली बात तो तेजस्वी को किसी ऐसे शो में जाना चाहिए जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो. ठीक है. सेकेंडली ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो तुम किसी के लिए बोल रहे हो. दीज आर एक्चुअली एक्यूजेशंस. ठीक है. पहले तुमने वो चीज बोल दी, ठीक है, उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो कि मेरा मतलब वो नहीं था. उसके बाद मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था. ठीक है ना. जो बंदा उस घर में ही नहीं है, और अगर उस इंसान के लिए भी था तो तब क्यों नहीं बोला गया. एंड देन द वीडियोज आर आउट of Maisha, like Maisha की वीडियोस आउट हो गई कि मैंने उसको मजाक में और गलती से मार दिया था. मतलब इतनी बड़ी accusation तुम किसी पे लगा रहे हो. accusation, how dare you do that being a girl, trust me. मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा ये सोच के that a girl like her, इतनी पढ़ी लिखी, she's talking absolute bullshit for a guy जिसने मतलब करण ने गलती की, उसको छुपाने के लिए तूने एक और गलत बात बोल दी इतनी बड़ी. That is not at all acceptable, not at all. And then तुम डर जाते हो, तुम दूसरों के ऊपर बातें डाल देते हो कि तुम आयशा के टाइम के लिए बोला था, ये बोला था, वो बोला था. Even I think I saw 1 or 2 posts आज जिसमें मायशा ने क्लियर किया है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद का स्टैंड खुद ले सकती थी. Nobody has to do it inside the house, which clears everything. उसने निशांत पे मतलब निशांत और प्रतीक दोनों को बोला ये चीज, which is absolutely wrong, absolutely. और फिर तुम बोल रहे हो मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, जैसे मैं तुम पे भरोसा करती हूँ. बुलशिट. ऐसे भरोसे की किसी को जरूरत नहीं है. Okay, do you feel, प्रेरणा, कि कहीं ना कहीं जब वक्त आने पे तेजस्वी actually uses women card, because ये allegations उन पे बीच में भी लगे थे कि वो women card play करने लगती है. Do you agree with that? Because कल का भी ये इंसिडेंट हो गया. And of course, कल मतलब अगर मैं इससे पहले की बात ना भी करूँ तो कल कर दिया उन्होंने ये चीज क्लियर that she does that. Absolutely. And if she thinks कि वैसे तो सारी दुनिया ये बोलती है लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, we are equals, और उसके बाद जब तुम ये अपना women card यूज करते हो फिर कहाँ जाती है ये सब बड़ी बड़ी बातें. You want to change the world,
But then again, you're talking all of that only. Who's going to change the world then? Okay, during the live feed, प्रेरणा, उमर ने करण से ये बात कही थी कि प्रतीक और निशांत से हर बार करण की लड़ाई इसलिए होती है बिकॉज तेज भी इन्वॉल्व होती है. अगर कल की भी अगर बात करें तो करण ने उस फाइट के बाद ये कहा था कि प्रतीक तेजस्वी को टारगेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाउंस बैक दिया था प्रतीक पर. जबकि एक्चुअली एज वी हैव सीन द एपिसोड, करण ने क्ले फेंका था निशांत पे एंड दैट वाज द टाइम व्हेन प्रतीक रिएक्टेड. डू यू थिंक तेजस्वी की वजह से प्रतीक और करण में फाइट हो जाती है? I don't think Pratik even cares what Tejasvi does and what not. To be really frank, उसके लिए I think वो exist भी नहीं करती होगी शायद उस घर में. ठीक है, ये तो बहानों की बात है. एंड प्रतीक ने बोला था ये क्या कर रहे हो, इसमें इतने गुस्से में आके उसको धक्का मार के उसको लात मारने की कोई बात नहीं थी. मुंह से बात नहीं करनी आती क्या? जहाँ पे इनसिक्योरिटीज, जहाँ पे तुमसे टास्क नहीं होते, वहां पे तुम अपने हाथ उठाने शुरू कर देते हो. वाओ, सो इजी, राइट? एंड मोर ओवर कि ये जो तेजस्वी के लिए मैंने ये किया, तेजस्वी के लिए, अरे पहले अपने सीना ठोक के बोलो तो सही कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है. तब तो तुम भागने लग जाते हो कि मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है. भाग नंबर मिलने से प्यार हो जाते हैं क्या? जो साथ में तुम रह रहे हो एक्सेप्ट तो करो, फिर ये सब बातें बोलना कि तेजस्वी के लिए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. तेजस्वी के लिए क्या पीट दोगे तुम लोगों को अंदर? और वो अपना स्टैंड नहीं ले सकती क्या खुद? टास्क है भाई, टास्क तो स्पोर्टिंगली करना पड़ेगा. तेजस्वी को हटा देते तुम, तुम्हारी खुद की बंदी है ना, तुम उसको हटा देते. Who are you to bloody go and kick somebody else? Right. So ये सब फेक चीजें, बकवास चीजें जो वो बोल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है. पूरी दुनिया देखे. लोग अपनी, मैंने जैसे कि बोला, लोग अपनी इज्जत खुद बनाते हैं और खुद ही गवाते हैं. एंड ही इज डूइंग इट ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली. ये प्रेरणा, एज अ व्यूअर जब आप देखती है इन दोनों को एज अ जोड़ी तेजस्वी एंड करण, यू मस्ट हैव सीन के बहुत से हैशटैग्स भी ट्रेंड करते हैं घर के बाहर. तेजरन है. क्या लगता है जब आप एज अ व्यूअर देखते हो, डू यू फील इट फेक या फिर ऑर्गेनिक? What is your thought on the Okay, I'll tell you something. From Karan's side, I think it's 500% fake. 500% fake. And it was started from Karan's side only, okay? तब बोला गया. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि maybe 10% Tejasvi is real towards Karan. Because she doesn't fear accepting things on national television that हाँ ये मेरा boyfriend है, I love him, हमने देखा है कि उन्होंने ऐसा बोला है. But Karan, not even once he accepted it. Not even once. मतलब what are you trying to show? That the girl is accepting everything while you started all of that. What is all this? So from Karan's side, I think it's 500% fake. Yeah. Because in the recent weeks of our episode, दोनों ने भी confess किया था कि they like each other and they are in love. Because Karan ने ये statement भी दिया था कि मार्च तक वो शायद शादी कर ले. मतलब मेरे को ये नहीं समझ आती कि अगर if you're in love, then what's the matter if you accept if you accept that she's your girlfriend and you guys are dating? What's the problem? I really hope. Okay, Prerna, निशांत and प्रतीक को हमने OTT से बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स देखे हैं. एक्चुअली अगर घर के अंदर कोई प्योर फ्रेंडशिप है तो वो निशांत और प्रतीक की ही है. बट अभी जब से VIPs आ गए तब से इनके फ्रेंडशिप के बीच में भी एक बैरियर आ गया. दोनों के एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट हो गए थे. देयर वाज अ टाइम जब प्रतीक घर में अकेले भी हो गए थे. डू यू थिंक लाइक निशांत ने भी थोड़े बहुत वो अगेंस्ट गए थे? ये लोगों की फ्रेंडशिप को लेकर आपको क्या लगता है? इज निशांत द परफेक्ट फ्रेंड फॉर प्रतीक? आई थिंक यार डिसएग्रीमेंट्स तो हर दोस्तों में होते हैं एंड गुस्से में आके हम बोल भी देते हैं, ठीक है, इट्स ओके. एंड आई रियली फील कि जहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, दे एक्चुअली स्टैंड फॉर ईच अदर, जो मर्जी है. एंड कभी चीजें बुरी लग जाती है तो इंसान अपना दिल हल्का करने के लिए बोल भी देता है कहीं पे, ना चाहते हुए भी एक्चुअली, ठीक है. किसी की आदत होती है, किसी की आदत नहीं होती. सो आई थिंक इस चीजों पे हमें उनकी फ्रेंडशिप, आई डोंट जज देयर फ्रेंडशिप ऑन दिस एट ऑल. आई थिंक दे आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड हर दोस्ती के पड़ाव आते हैं, लड़ाइयां होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती है, एंड इफ एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टैंडिंग टुगेदर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. ओके प्रेरणा, अगर किसी को घर पे आप प्रतीक को देखना चाहते हो कि वो उनके साथ मिलकर गेम खेले, बस वो अकेले ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आपको पेयर करना हो किसी और कंटेस्टेंट के साथ उनको, जिससे उनकी गेम स्ट्रॉन्ग हो सके, तो क्या लगता है कौन होगा एक्सेप्ट निशा? To be honest, I don't think so. He needs anybody to make his game strong. Personally, मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, इमोशनली यू नीड पीपल एट टाइम्स एंड उसके लिए निशांत है उसके साथ. एंड मुझे नहीं लगता यार दैट कि कोई भी उसको किसी चीज की जरूरत है, किसी की भी जरूरत है.
ओके प्रेरणा, एक वॉर चल रही है कहीं ना कहीं अगर हम देखें सोशल मीडिया पर, तो आपके बीच में और नेहा प्रतीक के बीच में रिसेंटली अब बहुत चीजें आगे बढ़ गई है, आप दोनों भी एक दूसरे को जी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। और रिसेंटली जी एक ट्वीट किया था नेहा ने, जहाँ पर इवन शी स्टेट के प्रतीक रिलेशनशिप में है, बट फिर भी वो गेम में इस बात को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, वो हम्म फिर भी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। नेहा ने हम्म ये सारी चीजें मेंशन की है, क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे उसका? पहली बात तो मुझे सही बताऊं, पहले बात तो मुझे उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शी हैज बीन पोकिंग मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई थॉट दैट आई शुड आंसर. So basically, it all started when I posted a tweet saying because everybody was upset that Prateek saved Neha and not Simba. So I had posted a tweet saying that Prateek saved Neha over Simba because of course they have been really good friends since OTT, and Prateek doesn't know anything about what's happening in outside, what has happened outside. Plus, these things don't define friendships. So this was my tweet on which उन्होंने कोट करके ट्वीट किया, स्टॉप स्कूलिंग योर ब्रदर व्हाटएवर बुलशिट शी सेड. उस पे फिर मैंने वीडियो बना के चढ़ाई थी कि वो मेरा भाई है एंड आई रियली नीड टू if I need to even school him, I will do that because I'm his elder sister, और मैं उसको सब कुछ सच बताऊंगी. और अगर सच बताना अपने भाई को स्कूलिंग है, so be it that. एंड मुझे ये सब चीजें ना बोली जाए बिकॉज अभी रिसेंट ट्वीट्स में she's blamed me that I instigated hate. बहुत गलत बोला गया है कि I instigated a lot of things towards her. I think जब तक तुम्हारे पास facts and figures ना हो, तब तक तुम इतने बड़े इल्जाम किसी पे मत लगाओ. अगर प्रतीक फैम में से किसी ने उसको कुछ गलत बोला है, तो मैंने उनको जाके नहीं बोला है. आई एम नॉट somebody जो एक एक इंसान के पास जाके उसको बोले. मुझे जो बोलना होगा मैं खुद बोलूंगी, और मैंने क्लियरली बहुत बार पहले भी इंटरव्यूज में बोला when I didn't like her. और मैं आज की डेट में भी बोलूंगी जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगी. So she said कि she tweeted that your brother keeps on running after women and whatever, he's in a relationship too. Even if a percent he's in a relationship, who the hell are you? Who the hell are you? First of all, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है उसकी कि वो रिलेशनशिप में है, वो लड़कियों के पीछे भागता है. She wants to school him. कौन हो आप? दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो यार. पहली बात तो आप दोस्त ही नहीं हो, ऐसे दोस्त नहीं होते. And she's bloody telling me put a leash on your brother. Excuse me, if I अगर मैं आपकी और फिर ऐसे लोग क्लास और क्लास की बात करते हैं, जो तुम खुद ही क्लास दिखा रहे हो अपने ट्वीट्स में, ये क्लास है तुम्हारी, then keep this class to yourself. Being famous doesn't make you a good person. Being famous doesn't buy you class, dude. It doesn't. You should have you should know how to talk. You should know what to write, what not to write. On one side you write कि people bully you, people talk shit about you. On the other hand, you are talking shit about me. What's the difference between them and you then? What's the difference? And what's your problem? That your problem is Prateek or me? मतलब इनको क्या प्रॉब्लम क्या है इनको कि प्रतीक लड़कियों के पीछे भागता है, प्रतीक रिलेशनशिप में है, प्रेरणा ने मेरे खिलाफ हेट इंस्टिगेट की, ये किया. यार एक्सक्यूज मी, मैं तो बिग बॉस ओटीटी में नहीं थी ना. जो किया आप सब लोगों ने किया है यार. जो बाहर देख रहे हैं मेरी आंखों से थोड़ी देख रहे हैं, उनकी मर्जी है वो क्या करते हैं क्या नहीं. मैं तो एक ग्रुप कंबाइंड मैसेज डाल सकती हूँ सबके लिए कि भाई ये मत करो. इवन प्रतीक ने तो नाम लेके डाला कि भाई मत करो, आई वाज आल्सो इक्वली इन्वॉल्व्ड. उसके बाद क्या किया आपने? उसको ब्लॉक और उसको अनफॉलो और ब्लॉक करके चले गए. ये दोस्ती है तुम्हारी? प्लीज, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे हैं, ट्रस्ट मी. मतलब यू कीप ऑन पोकिंग समबडी. मैंने तो आपसे बात ही नहीं की. मैं तो आपसे बात ही नहीं करती ना, मुझे आपसे कोई लेना देना है. आई डोंट इवन केयर व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट. बट यू आर चेकिंग माय ट्वीट्स जिसमें आपका नाम भी मेंशन नहीं है, एंड मैंने कुछ गलत भी नहीं लिखा. टू बी रियली फ्रैंक, मैंने तो वही लिखा जो हो रहा है. सो व्हाई डू यू वांट टू poke me and then you'll get this in return. Sorry, I'm not going to keep shut now. Enough is enough. Yeah, you keep on saying, you keep on I think ये बहुत ही बड़ी चीज किसने बोली, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. खुद ही आप इंस्टिगेट ऊपर से दोस्ती नाम का तो मतलब समझ ही नहीं आता ना. लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, ये क्या मतलब है? तुम खुद जाके बिग बॉस 15 में एक लड़की का नाम लेके बोल रहे हो कि उसका लव एंगल नहीं चला इसलिए उसको निकाल दिया. तुम बुली कर रहे हो यार दूसरी लड़की को जो उस घर में भी नहीं है. यू आर ट्राइंग टू
make people against her also, so that people bully her. और अपने आप को फिर अच्छा इंसान बोलते हैं. Wow. मतलब I should clap for such people. Trust me. You know what? I don't even give a damn about all of these things. But it's been really long that I've been. She's been doing all of this, so I wanted to, you know, put a full stop on all of this. Right. या तो क्लियरली वो बोल देना कि उनको प्रॉब्लम क्या है. उनको ये प्रॉब्लम है कि प्रतीक की गर्लफ्रेंड है. बोल देना क्लियरली. मेंशन इट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक दैट. फिर आगे की बात करें ना. पहले ये बात करी कि ऐसे करो, उसके बाद बात ही पलट दी वहां से कि भाई आपने मेरी तरफ हेट इंस्टिगेट किया, फिर मैं प्रॉब्लम होगी. पहले प्रतीक प्रॉब्लम था. विद इन 5 मिनट्स पहले मैं ब्लॉक हुई, उसके बाद फिर मैं प्रॉब्लम हुई, फिर मैं अनब्लॉक हो गई. मतलब व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये फालतू की बातों का. और फिर मुझे बोलते हैं कि मुझे उनके नाम से फेम लेना है. आई एम सॉरी यार, मुझे फेम की कोई जरूरत नहीं है. और ऐसा फेम, हाथ जोड़े में मेरे तो. थैंक यू. शी कैन गेट ऑल द फेम शी वांट्स. She can take all the fame she wants. She can. She's a big celebrity and I think she deserves all the fame. Please take it. Okay, you know, जब से ये statement आया है प्रेरणा, एक लड़की के साथ, you know, there have been pictures viral जो हो रहे हैं and people are assuming that she's a girlfriend. I won't mention the name, but even you must have seen that. You know, क्या कहना है उस पर? She's also my very good friend and she's Pratik's best friend. Plus, to be honest, जो भी प्रतीक का रिलेशनशिप स्टेटस है या नहीं है, I think he's the best person to come out and tell. Who am I to, you know, say? It's his personal life. कल को उसकी गर्लफ्रेंड है, नहीं है, वो खुद आके बताएगा. मतलब I don't understand why is she so curious about all these things? Dude, have a very happy married life. I told her in the tweets also. Rather than, you know, focusing on what Pratik is doing, who is Pratik running after, I think she should focus on her life. She's got a very, I hope, you know, she does great in life and I'm sure she's got a very good career in life ahead. She's a very good singer. So I think she should be concentrating on that rather than doing all of this. I don't understand what's up with people. Yeah. Okay, प्रेरणा, जब से VIPs आए हैं, एक वॉर है जो घर में चल रहा है, which is between देवलीना and शमिता. What do you have to say about them? Because constantly जब से देवलीना आई है, तब से she is poking शमिता. शमिता is giving a bounce back. एक और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया. Even शमिता, उनकी हेल्थ खराब हो गई थी उस चीज की वजह से. What do you have to say the scenario which is actually going on inside the Big Boss? यार देखो, अगर एक इंसान को पोक करते रहोगे तो कभी तो the other person will actually bounce back on you, right? The other person is also a human being. तो मुझे ऐसा लगता है यार, I like Devolina also, I like Shamita also, but I never thought कि Devolina is going to, you know, मैंने कभी नहीं सोचा था कि Devolina और Shamita की इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, because I know Shamita also. तो मुझे नहीं कभी भी ऐसा लगता था कि इतना कुछ हो जाएगा. आई शुड थिंक दैट, यू नो, अगर इतनी ही लड़ाई हो रही है तो एक थोड़ा सा मेंटेन करना जरूरी है. उस यू नो, अपने आप को थोड़ा सा एंगर कंट्रोल करना जरूरी, बिकॉज वो चीज पता नहीं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इस टॉपिक पे. बिकॉज आई हैव सीन देवोलीना आल्सो शाउटिंग एट हर एंड देन शमिता इज आल्सो शाउटिंग बैक एट हर, एंड वो इतना ज्यादा डर्टी हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एंड देन इट्स अफेक्टिंग बोथ ऑफ देम. सो आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. Okay, according to you, प्रेरणा, you know, because आप बहुत अच्छे से जानते हो प्रतीक को, क्या लगता है कि गेम के इस पॉइंट पे, you know, बहुत क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रतीक को जेन्युइनली अवॉइड करनी चाहिए, एंड यू नो, बहुत सी ऐसी चीजें जो आप चाहते हो कि वो अपने नेचर में, यू नो, तो वो जैसे है वो वैसे बाहर लाए उस चीज को एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. आई थिंक वो जैसा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे बस यही हमेशा से लगता था कि वो जब ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो खुद को हर्ट कर लेता है. आई जस्ट डोंट वांट हिम टू डू दैट. दैट्स ऑल. आई थिंक ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ व्हाट एवर हैज हैपेंड इन द हाउस टिल नाउ. एंड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है मुझे, टचवुड. तो आई वांट हिम टू बी लाइक दैट, ट्रस्ट मी. बिकॉज अगर कोई और होता तो आई थिंक अभी तक गिव अप कर चुका होता. बट he is actually very strong because बहुत ही गंदी घटिया statements बोली गई हैं for him and still he's you know standing and मतलब बहुत strongly he has come out of that. So I think he is brilliant.
Okay, and lastly, Yeah. Prerna, who according to you are top 5 contestants of Bigg Boss 15? Prateek, Nishant, Shamita, uh, 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 um, Umar, and Rakhi for me. Okay, that's quite shocking that there's no Tejas and Karan in your list. They don't exist for me either. Okay, what do you have to say to all the Prateek fans, because they are loving him so much and supporting him throughout his journey since OTT and supporting you as well? Yeah, they have been the real support for me outside. Trust me, Prateek को तो नहीं पता अंदर बाहर क्या हो रहा है. But like a very strong family, we stand by each other. And trust me, यार मतलब मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ, and I actually mean it, that I really love them all. And I just want to thank them for being there for me with for everything, each and everything. Like जब मैं low हो जाती हूँ, they actually give me so much of power and strength to stand back again. So I just want to say that I really love them all, and thanks for being there with me and Prateek. And we'll do anything that it takes to get the trophy home. So yeah, Oh, that's really sweet of you, Prerna, and it was lovely talking to you. Thank you so much for thank your you so precious much. time. Thank you so much. Yeah. And really hope that Pratik wins because he's really doing amazing. Thank you. Yeah, thank you means a lot. Thank you so much. Thank you so much, Prerna, and all the Bye. best Bye. for your Bye. future. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Yeah. Thank you. Bye. Bye.